majority of the people, I'm talking about majority of the people, रमजान को सिर्फ भूखा और प्यासा रहने से समझते हैं. They only understand nil by mouth, don't eat, don't drink, don't consume anything is Ramzan. This is totally wrong. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ہم سب تمام مومنوں کو اس ماہ مبارک کے مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایک پیغام، ایک خوشخبری یہ مہینہ لے کر آیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا باقی رہے گی رمضان کا مہینہ آتا رہے گا. قیامت تک جب تک مطلب دنیا ایگزسٹ رہے گی، یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اپنے وقت پر، جائے گا اپنے وقت پر. یوں کہہ لو کہ چاند سے شروع ہو کر چاند پر ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ تو آئے گا قیامت تک، ہم نے تو قیامت تک رہنا نہیں. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو استعمال کر لیں. ہر انسان اس مہینے کے موٹیوز کو سمجھ جائے. یہ مہینہ جو پیغام لے کر آیا ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم خدا کے اور نزدیک ہو جاؤ. سب سے نمبر 1 پہ ہے پیغام جو رمضان لے کر آیا کہ تم خدا کے اور نزدیک ہو جاؤ. دوسرا پیغام لے کر آیا ہے کہ اپنے اندر بھائی چارہ کو بڑھا دو. جو ایک ریلیشن ہوتا ہے، چاہے وہ فرینڈشپ کے لیول پہ، چاہے وہ فیملی کے لیول پہ، چاہے وہ گھریلو لیول پہ، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، اپنے اندر جو ہمبلنس ہے، بی اے ہمبل پرسن، بی اے سافٹ اسپوکن پرسن، بی اے لینین پرسن، بی اے ڈاؤن ٹو ارتھ کائنڈ آف پرسن. یہ پیغام رمضان لے کر آیا ہے. ہمیں اور آپ کو نرم مزاج سکھانے کے لیے آیا ہے. ہمیں اور آپ کو بھائی چارہ بانٹنے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو درار بنا ہوا ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر اسپرچول اسٹرینتھ دینے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جو گناہ کی ایک عادت پڑ گئی ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر نیکی کے جذبات کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. ہمارے اور آپ کا جو جسم 6 فٹ کا جو ایک دھڑ اوپر والے نے دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے آنکھ کا جو استعمال ہے، زبان کا جو استعمال ہے، دماغ کے سوچنے کا جو استعمال ہے، ہاتھ کے پکڑنے کے اعتبار سے جو استعمال ہے، پیر کے بڑھنے کے استعمال، ہر پورشن آف دی باڈی کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، یہ سکھانے کے لیے رمضان آیا ہے. majority of the people, I'm talking about majority of the people, رمضان کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے سمجھتے ہیں. They only understand nil by mouth, don't eat, don't drink, don't consume anything is Ramzan. This is totally wrong.
दिस इज ओनली पार्ट ऑफ रमजान, पार्ट ऑफ रोजा, कि भूखा रहना प्यासा रहना। बाकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एम्पावर करना, रूहानी कुव्वत जिसको कहते हैं, ये असल है। भूखा प्यासा तो वैसे भी हम कितने लंच अगर 12 बजे कहीं 3 बजे जाके करते, कहीं तो करते भी नहीं है, इतने बिजी, तो इससे तो रमजान का रोजा तो नहीं साबित हो जाता। तो भूखा प्यासा रहना इज पार्ट ऑफ रोजा, लेकिन असल है कि हमारा इनर को जो है, हार्ट को, जिसको सोल, जिसको रूह कहते हैं, वो हमारा जाग जाए, उसको हम स्ट्रेंथन दे दे। ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोजा। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज है, तुमसे पहले वारों पर भी फर्ज था। लअल्लकुम तत्तकून कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बनो, तुम परहेजगार बनो, तुम नमाज में और जान लेकर आ जाओ। कोई भी इबादत करो उसके अंदर जान आ जाए। कोई भी इबादत जो होती है ना, उसके 2 भाग होते हैं। कोई भी इबादत आप ले ले, कोई एनी इबादत, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे देखने में नजर आए चाहे नहीं, उसके 2 भाग है। एक है फिजिकल, एक है स्पिरिचुअल। फिजिकल कहते जो देखने में नजर आता है, जैसे इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो जब नमाज पढ़ता है देखने में नजर आता है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, दुआ मांग रहा है, सलाम फेर रहा है, कयाम में खड़ा है, तशहुद में बैठा है, तो ये सब नजर, ये है फिजिकल पार्ट ऑफ नमाज। एक है स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ नमाज, कि वो नमाज में इतनी कुव्वत हो, इतना स्ट्रेंथ हो कि वो अल्लाह से नजदीक लेकर जाए तुम्हें, और सवाब कमाने का जरिया बन जाए, वही नमाज। तो रोजा भी इसी तरह, जो फिजिकल पार्ट है वो है भूखा रहना प्यासा रहना, और जो स्पिरिचुअल पार्ट है, जो असल ऑब्जेक्टिव है रोजा रखने का, वो है कि हमारे ईमान में पावा आ जाए, हमारी रूह में और पावा आ जाए, ताकि गुनाह करने का अपॉर्चुनिटी भी मिले, मौका भी मिले, पोटेंशियल भी हो, तो भी इंसान गुनाह की तरफ ना बढ़े। यह है रोजा का मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसे ना हो कि गुनाह का मौका मिले, अच्छा मौका मिले, रात का अंधेरा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई विटनेस करने वाला ना हो, और खूब मुंह काला करे, ये तो रोजा का मकसद नहीं हुआ। तो समझो ये हुआ कि भूखा रहना प्यासा रहना अपना रंग नहीं चढ़ा पाया। असल है कि रमजान आए और अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ा दे, कि हम इतने बदल जाएं कि हमारे घर वाले खुद विटनेस करें कि इसके अंदर तो इतना तब्दीली आ गया। जब हम बाहर निकलते हैं अपने इलाके से, इलाके में बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, तो इलाके वाले भी विटनेस करें कि इसके अंदर तो इतना फर्क आ गया। जब मस्जिद में एंटर हो, मस्जिद वाले विटनेस करें इसके अंदर तो बड़ा फर्क। ये है रमजान का ऑब्जेक्टिव। तो ये सिर्फ भूखा और प्यासा रहने से नहीं होगा। हर रोजेदार रोजे के हालत में अपने बारे में फिक्र करे कि कैसे मैं बदल जाऊं, कैसे मैं यूटिलाइज हो जाऊं, कैसे रमजान अपना रंग मेरे ऊपर चढ़ा दे। हर इंडिविजुअल अगर यकीन करे, अगर इस कॉन्सेप्ट पर आ जाए, इस फिलॉसफी को अपना ले, तो यकीन करे दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा। हर रोजेदार का रोजा सर के ऊपर से जाए ये भी जरूरी नहीं है। हदीस में आता है कुछ रोजेदार ऐसे हैं कि उनको शाम तक सिर्फ भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो भूखा और प्यासे तो रहे लेकिन बाकी गुनाह करते रहे। तो रोजा का तो ये मैसेज ही नहीं है, रमजान का तो ये मैसेज ही नहीं है कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना। भूखा प्यासा, जैसे मैंने अर्ज किया कि भूखा रहना प्यासा रहना, अपने आप को रोक के रखना, दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ रोजा। अब बाकी चीजों को भी अमल करना है, भाईचारा बांटना है, प्यार बांटना है, पड़ोसी से जो अनबन हुई है उसको सुलझाना है, जो लेन देन का मामला है उसको क्लियर कट रखना है, गुस्सा नहीं करना है, जुबान की हिफाजत करना है, नजरों की हिफाजत करना है, अपने दिमाग के सोचने के एतबार से सोच की हिफाजत करना है, क्या पकड़ रहे हो, किधर चल, बहुत से चीज अकोमुलेट होकर इज इक्वल टू मकबूल रोजा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंसान सहरी कर ले, शाम को इफ्तारी में हिस्सा ले ले और इतना खा ले कि ईशा भी ना पड़े। तो रोजा का तो ये पैगाम ही नहीं है, ये पैगाम नहीं है। अभी रमजान का महीना आया है, अभी शुरू के दिन है, तो शुरू के दिन में देखेंगे मस्जिद माशाल्लाह एकदम भरा हुआ। जैसे जैसे कुछ दिन और आगे जाएगा,
खाली होते होते लास्ट में फिर पिक कर लेगा, तो इसका तो नाम रोजा नहीं हुआ ना। रोजा जो है वो रिवाजी तौर पर मत रखो, सॉलिड वे रखो कि कुछ फर्क तो हो। और सुबह सुबह इतना भी ना खा लो कि शाम तक पता भी नहीं चले कि मैं रोजा था, तो रोजा का फायदा, ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूरा हुआ ना। कि इतना खा लिया कि असर 5 बजे शाम तक ढेकार आ रहा है कि इतना, अब रोजे का तो मकसद ही नहीं पूरा हुआ। और भाई इतना खाओ कि थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस हो, ताकि वो फीलिंग्स हमारे अंदर आए कि दुनिया के उस कोने में लोग कैसे रहते होंगे जिनको 3 दिन 4 दिन, जिनके घर में चूल्हा भी नहीं बरता, जिनके बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, जो मेहनत करने के बावजूद भी दिन में 1 मील खाते हैं और वो भी पेट भर के नहीं खाते। वो फीलिंग तो हमारे अंदर आए। इतना ना खा लो कि 12 बज गया, दिन 1 बज गया, 2 बज गया, खाना बिल्कुल भूख ही नहीं लग रहा, प्यास ही नहीं लग रहा। ठीक है, कोई गुनाह तो नहीं है, ज्यादा सुबह खाने में, सहरी अच्छी तरह रच के खाने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर अपने रूह को पावा देना हो तो इतना खाओ कि थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस हो। और उस तकलीफ के हालत में जब ये गुनहगार हाथ अल्लाह के दरबार में दुआ के लिए उठता है ना, तो अल्लाह की रहमत भी मजबूर हो जाती है उस दुआ को सुनने पर। कि फरिश्ते भी अल्लाह से कहते हैं कि ये बंदा अंदर से टूटा हुआ है, भूख की हालत में है, प्यास के हालत में है। अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह सब जानता है। जो आज से कई 1000 साल पहले दुनिया में हुए वो भी उसको जानता है, 1000 साल आने वाला जो है, जो दुनिया में होगा, वो भी उसको जानता है। तो एक भूखे के हालत में, प्यास के शिद्दत के हालत में दरबार में हाथ उठा के या रब कह रहा हो, कैसे वो देगा? तो वो फीलिंग तो हमारे अंदर आए। और ये महीना एक पैगाम लेकर आया है कि मैं आया हूं और चला भी जाऊंगा, मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे इस्तेमाल कर लो। जो समझ जाता है वो कर लेता है, और जो बेचारा नहीं समझता वो सिर्फ एक ही चीज को पकड़ा हुआ है, सहरी अफ्तारी, बस यही दो में वो बेचारा रिंगी मार रहा है, घूम रहा है। और अपने और लोग पूछते कहते मैं रोजा, भाई ठीक है रोजा तो है, लेकिन रंग नहीं चढ़ा पाएगा। रमजान का मकसद है अपना रंग चढ़ाए, ऐसा रंग चढ़ाए कि ईद के नमाज के बाद पूरे घर के लोग उससे खुश, पूरे इलाके के लोग उससे खुश, पूरे खानदान के लोग उससे खुश, वो जहां भी जाए खुश। ये है रमजान का असल मकसद। तो इसलिए मौजूद सामने ने कहा, अब कोई महीने तो नहीं है, यकीन करे हर इंसान सिर्फ अपने बारे में फिक्र कर ले, हर मर्द अपने बारे में सोचे। ये 15 चीजें मेरे अंदर जो नास्टी चीजें हैं, गंदी चीजें, इस रमजान में मैंने छोड़ना है। हर इंडिविजुअल, हर औरत जो मेरे अंदर 10-15 चीजें बुराई की थी, ये मैंने छोड़ना है, बस खत्म, रमजान अपना रंग चढ़ा लेगा। वरना जैसे कंटेंट में मैंने शुरू में कहा था कि ये महीना क़यामत तक आएगा और आता रहेगा, आएगा और जाएगा। और अगर एक चीज आप सब नोट करेंगे, यही एक महीना, पूरे 12 महीने में यही एक महीना है जो बहुत रफ्तार से जाता है। सिर्फ पहला अशरा 10 दिन थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि 11 महीना खाने पीने की आदत होती है ना। ये एक जो पहला अशरा फेस्ट 10 डेज, सिर्फ यही इंतजार है, इसके बाद बाकी 20 तो जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो इसलिए मौजूद सामीन इकराम, जे भी दिन है हमारे पास, अपने जुबान की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो 2 चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मैं मोहम्मद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेता हूं, उसको जन्नत दिलाऊंगा। एक जुबान की हिफाजत कर ले, दूसरा जो 2 पैर के बीच में जो प्राइवेट पार्ट है, इसकी हिफाजत कर ले। ये 2 चीजें जिसने सही इस्तेमाल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी ले रहे हैं अपने ऊपर, मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत दिलाऊंगा। और दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, दुनिया में जितने भी गुनाह नास्ती चीजें हो रहे हैं, या तो जुबान से या उस चीज से, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे, अश्योरेंस दे रहे, तुम इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो, मैं मोहम्मद हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। तो इस एक महीने में ये 2 चीज संभाल ले। आंखों का देखना, गलत ना देखे, कानों का सुनना, जैसे मोंग ने कहा, ना देखो इवल, ना बोलो इवल, ना सुनो इवल। ये बहुत सॉलिड मैसेज है। ना सुनना, ना बोलना, ना देखना। एक चौथी चीज है, ना सोचना।
یہ 4 پرنسپل اگر انسان اپنا لے اور اس مہینے کے اندر اپنا لے 30 days اکارڈنگلی اگر گزار لے, یقین کرے اس کا امپیکٹ, اس کا ریفلیکشن باقی 11 مہینے پہ پڑے گا. یہ 1 مہینہ پریکٹیکل کا ہے, پریکٹیکل, اسپرچولی, فزیکلی, فائنینشلی, مورلی, ہر اعتبار سے پریکٹیکل. اس کا امپیکٹ ہم خود دیکھیں گے, خود دیکھیں گے. یقین کرو کسی کو بولنا نہیں پڑے گا, خود دیکھیں گے میرے اندر چینجز آ رہا ہے. میرا جو اسپرچول ہے اب اس کا امپیکٹ فزیکل پہ پڑ رہا ہے, کیونکہ اندر سے جب دل صاف ہوتا ہے نا, اندر سے جب دماغ صاف ہوتا ہے نا, تو اس کا ریفلیکشن جسم پہ پڑتا ہے. اور جس کے اندر سے گندا ہوتا ہے اس کا بھی امپیکٹ باہر پڑتا ہے, کیونکہ جیسا سوچ ہوتا ہے ویسا ایکشن ہوتا ہے, جیسا سوچ ہوتا ہے ویسے ورڈز فلو پہ پھر وہ پھینکتا ہے. اسے وہ کہنے والے نے بڑا بہترین بات کہا, یہ زبان جو ہے نا, یہ زبان جب کھلتی ہے اور جو نکالتی ہے تو پتا چلتا ہے یہ لوک سمتھ اندر ہے یا سونار اندر ہے. زبان کے کھلنے سے ہی پتا چل دیتا ہے کہ اندر لوک سمتھ ہے, لوہار خانہ ہے, یا سونے کا کھان ہے. یہ زبان ہی سے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ 1 مہینہ اگر ہم اس کو استعمال کر لیں, یقین کریں we will be enjoying rest of our 11 months. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اسپرچول سائڈ اور فزیکل سائڈ دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ اس مہینے کو قبول عطا فرما, اس مہینے کی عبادت کو قبول عطا فرما, اور جو لوگ یا اللہ محنت کر رہے ہیں اس کے محنت کو قبول عطا فرما. جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت عطا فرما. جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما, اور ان باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ یا اللہ محنت کر رہے ہیں, جس بھی لائن سے محنت کر رہے ہیں, عبادت کے لائن سے, کھانے پکانے کے, سحری افطار, جو بھی محنت, سب کو قبول عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry, your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. عرش و کرسی سے مقام کا دوبالا دیکھا, دہر میں نام محمد سے اجالا دیکھا. دنیا والوں کیا دکھاؤں میں دلیل اور کوئی, حسن کا جب کہ قرآن حوالہ دیکھا. طہر میں جس نے محمد کا, طہر میں جس نے محمد کا نظارہ دیکھا, دیکھنے والوں نے ایسا نہ دوبارہ دیکھا. طہر میں جس نے محمد کا نظارہ دیکھا, جن کے رخسار کی قسمیں بھی خدا کھاتا ہے, حسن کو دیکھ کے یہ چاند بھی شرماتا ہے.
किसी ने न कोई ऐसा है प्यारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा, देखने वालों ने ऐसा न दोबारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा। चाह कितनी है खुदा अर्श पे बुलवाता है, इस मुलाकात में ये वक्त भी थम जाता है। लाज महबूब की रखी तो जहां ने ये कहा, लाज महबूब की रखी तो जहां ने ये कहा। चांद को तोड़ा है जिसने वो इशारा देखा। चांद को तोड़ा है जिसने वो इशारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा, देखने वालों ने ऐसा न दोबारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा। उनके अखलाक व मकारिम का है कुरान गवाह। उनकी तारीफ में औराक जहाँ भर के से ढूंढने वालों ने ताहा निगाह ढूंढा, मगर ढूंढने वालों ने ताहा निगाह ढूंढा, मगर रहमतों की ना कोई हद ना किनारा देखा। रहमतों की ना कोई हद ना किनारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा, देखने वालों ने ऐसा न दोबारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा। आपके दामन रहमत से हिदायत पाई, जिसने भी थाम लिया पल्ला है जन्नत पाई। छोड़ कर आपका दामन जो कहीं और गया, छोड़ कर आपका दामन जो कहीं और गया। ना गुजारा ना कहीं और है बारा देखा। ना गुजारा ना कहीं और है बारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा, देखने वालों ने ऐसा न दोबारा देखा। दहर में जिसने मोहम्मद का नजारा देखा। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक
रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।